Hello, dear kids. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your homes. You're doing well. So, dear kids, today we are going to start next unit from your practice book, that is comparison. As you can see the words on the screen: good, more beautiful, thinnest, shorter, brighter, worse, best. These all words are degrees of comparison. Now, what are degrees of comparison? Before moving to degrees of comparison, let me show you some examples. Three pictures are there, these three pictures. The very first picture, heavy. What is heavy? The load, the weight that this person is having, that is heavy load. This is heavy. Second one, heavier. Heavier. And third one, heaviest. Heaviest. So now you can see the three words: heavy, this one, heavier for this one, and heaviest for this one. You can see the facial expressions also, and you can come to know easily the difference between these three words. वो आपको इनके facial expression से ही पता चल जाएगा. Let's take one more example. Oh, three boys are there. Sam. Sam is a tall boy. Then Ricky. Ricky is taller than Sam. Now, among these three, Tim is the tallest. Okay, Tim is the tallest. Now you can see, beta, that if we are showing an equality of a person, a simple quality, for that purpose we use this one, tall, this adjective. And second one, when we are comparing two nouns, two things, Ricky and Sam, when we are comparing Ricky and Sam, तो Ricky is taller than Sam. ये Ricky बड़ा है Sam से, तो ये कंपैरिजन हुआ इन दोनों के बीच में. अब हम अगर तीनों लड़कों की बात करें, इन तीनों की, more than two, for that purpose we would say Tim is the tallest boy among these three. Okay, let's take one more example. Oh, balloons are there. Now we have a big balloon. This one is bigger than this one, and among these three balloons, this one is the biggest balloon. Okay, this one is big, this one is bigger. We are comparing these two, and among these three, this is the biggest. Three pencils we have. Long. I have a long pencil. Yes, this one is long. Then longer. Among these two, between these two, this one is longer than this. And among these three, this one is the longest. तो जब दो चीज़ों की बात जब हो रही है, तो वो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग उनका किसी एक क्वालिटी के बेस पे, तो दैट वन इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव. एंड लास्ट वन, ये जो सबसे हायर क्वालिटी होती है, दैट इज़ दिस वन, सुपरलेटिव. नाउ आफ्टर these examples we come to know that we have degrees of comparison. Now degrees of comparison are divided into three parts: positive, comparative and superlative. ये तीन डिग्रीज होती हैं हमारे पास: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री. अब हम इनको एक एक करके करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन. व्हाट इज़ ए पॉजिटिव डिग्री? होती क्या है पॉजिटिव डिग्री? इट इज़ एन एडजेक्टिव इन जनरल फॉर्म. ये एक एडजेक्टिव ही होता है. इट डिनोट्स सम क्वालिटी ओनली. ये सिर्फ एक क्वालिटी को बताता है. नाउ एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव इज़ ए वर्ब
इट इज़ ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन, प्रोनाउन, ओके, जो एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव ही होता है, ये जो पॉजिटिव डिग्री होती है, बिकॉज दीज डिग्रीज आर वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करती हैं ये एडजेक्टिव का ही पार्ट हैं। तो ये जो एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, ये एक जनरल एक एडजेक्टिव होता है। इट डिनोट्स सम क्वालिटी ओनली, और ये सिर्फ एक क्वालिटी को बताता है, किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताता है, जैसे गुड, बैड, थिन, लॉन्ग, हाई, टॉल। जैसे गुड बॉय, बैड बॉय, थिन बॉय, लॉन्ग बॉय, हाई, ओके, हाई बिल्डिंग, टॉल बॉय, ठीक है। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। सिंपल उसकी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, उनको बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड वन वी हैव comparative degree. Now, what is a comparative degree? It denotes a higher degree of the quality than the positive. It is used when two things are compared. Okay बेटा, ये कह रहा है कि हायर डिग्री, एक हायर डिग्री को बताता है क्वालिटी की, किससे हायर होगी? पॉजिटिव डिग्री से हाई होगी। वो एक ऐसी डिग्री होगी जो पॉजिटिव डिग्री से हाई होगी, उसको बोल कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी उसके लिए। और जब हमारे पास दो चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, एज वी डिड इन आवर एग्जांपल्स ऑल्सो। जब दो चीज़ों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ दिस कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये जो दैन है इसका मोस्टली यूज़ होता है, दैन, ओके। इसके और भी रूल्स हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली दैन यूज़ होता है कंपैरिजन में। जैसे गुड, बेटर, गुड का सेकंड कंपैरेटिव डिग्री हुई बेटर। राम इज़ बेटर दैन श्याम, दो लोगों का कंपैरिजन हुआ, ठीक है। वर्स, थिनर, लॉन्गर, हायर, टॉलर, ठीक है। ये अब इसमें आपको एक कॉमन सी चीज़ दिख रही होगी, क्या? ई आर। मोस्टली जो कंपैरेटिव डिग्रीज़ हैं वो ई आर से एंड होती हैं, मोस्टली। मैं सारी नहीं बोल रहा हूँ, मोस्टली बोल रहा हूँ। ज़्यादातर जो भी कंपैरेटिव डिग्रीज़ होती हैं वो ई आर से एंड होती हैं। वो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके रूल्स करेंगे, वो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं, और दैन, THAN का यूज़ करते हैं, देन नहीं। नेक्स्ट वन वी हैव सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट इज़ ए सुपरलेटिव डिग्री? इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, सबसे हाई डिग्री है वो क्वालिटी की। इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू आर कंपेयर। जब दो से ज़्यादा, more than two things are compared, at that time we use this superlative degree. जैसे best, worst, thinnest, longest, highest, tallest, ठीक है। He is the tallest boy in the class, ठीक है। This is the longest road in our country. He is the thinnest person in our office. तो ये कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के लिए कंपैरिजन के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री मोर देन टू के लिए। और ये हाईएस्ट डिग्री होती है, क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री होती है। और एक और बात याद रखिए, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ में हम लोग नॉर्मली द का यूज़ करते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री के साथ, द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, ठीक है बेटे। I hope this is clear to all. I would request you to revise the same, okay? Thank you so much.